very disappointed यार मेरे को मतलब I was under the opinion कि Rinku would be like a sure shot in the team selection मतलब I think after MS धोनी हमें first time कोई finisher मिला था टीम में जो excel करता है batting you know at number 6 number 7 and he showed that even when he was playing for India मैं समझ सकता हूँ कि maybe you know you don't want to go by IPL form but वो एक साल इंडिया के लिए T20 खेला and he was in terrific form मतलब not even one single game there was जहाँ वो नहीं रन बना रहा था even in that game against Afghanistan when he played with Rohit Sharma पूरी team out हो चुकी थी and he single-handedly batted with Rohit Sharma you know to kind of get India to that amazing score. Hi I guys, welcome to another episode of the Playground Podcast. Um, uh, so this video we're essentially making to discuss the team selection for India's T20 World Cup. The team select हुई है. So obviously we took a couple of days to just you know digest कि जो भी selections हुई थी and in fact you know we were going through some of the other IPL performances and everything and you know we've discussed whatever we felt you know the team selection should have been, what did we feel was not right, what we felt were some good decisions, some bad decisions. So we thought, you know, why not make a video around it and bring it to you guys and you know take in your views whether you're happy or not with the selections and everything. And you know we've also you know we made our team as well. We had our 15 people that we had selected, so we'll share that also with you, you know, kind of taken your views on that 15 that we had selected. And I think we had made a very good selection because we got 14 out of the 15 right. So I think we're making kudos to us on that we got 14 out of 15 right. But the one that we didn't get right is the one which is being debated the most, which is Rinku Singh. So yes, we will come to that later. You know, honestly, I'm extremely disappointed Rinku के drop होने से. But हाँ, रिंकू का तो मतलब काफी हार्ट ब्रेकिंग सिलेक्शन का वो रहा है. इवन द सोशल मीडिया आउटक्राई दैट इज कमिंग आफ्टर दैट सिलेक्शन इज आल्सो वेरी. बट ठीक है, आई थिंक 25th तक का तो रिजर्व्स में है ही, तो मे बी दे कैन सी सम चेंजेस इन द स्क्वाड. um one two squad members that I think are there, but I don't think would be making it to the playing 11 currently, are basically Samson and Shivam Dube. Again, with the, on social media as well, there are people criticizing not, but saying that they're only going there for moral support. But their selection in the playing 11 seems a bit unlikely. Apart from that, I think Avesh Khan is one bowler who could have been given a chance in the squad instead of Siraj. Siraj ka, again, as we talked in the previous videos as well, ki workload management and थोड़ा बर्नआउट होना शुरू हो गया है. तो ये भाई पक्का नहीं कि मतलब वो T20 वर्ल्ड कप में अब कैसा परफॉर्मेंस रहेगा विद कमिंग बैक सिंस, मतलब ही इज बीन प्लेइंग सिंस द बेसिकली बिफोर द वर्ल्ड कप एज वेल, द एशिया कप एंड एवरीथिंग. तब से कंटिन्यूअसली खेले ही जा रहे हैं सिराज. हाँ मतलब for me also, Arshdeep and Akshay Patel are the two players. I don't know why they're selected. Not been performing well at all. बिल्कुल भी before the IPL also. I mean, I don't find Akshay Patel in the 25-man squad also, or 25 पहले select हुई होती. मतलब having Jadeja in the team is okay, but having two left-arm spinners doesn't make sense at all. So, and plus Arshdeep also very poor form. And I know IPL के basis पे नहीं कर रहे, but then again, why is Rinku not selected then? And I think बहुत ही इसको बैलेंस करना अब टीम के लिए बड़ा वो है. मतलब now every team, हार्दिक पांड्या will have to play every match, and his form is also not that great. So कैसे बैलेंस होगा टीम का वो पता नहीं है. so मैं एक काम करते हैं. Firstly, we'll share the team that we had prepared to you know show you कि हम क्या चाहते थे, what was the kind of team that we wanted to take. So this is our team essentially, guys, if you can see. And basically, you know, we went in with the same selection Joe with the team had you know selected. So, but the only difference that we had was that we had Rinku Singh,
And I mean, I personally am very very disappointed यार. मेरे को मतलब I was under the opinion कि Rinku would be like a sure shot in the team selection. मतलब I think after MS धोनी हमें first time कोई finisher मिला था टीम में जो excel करता है batting, at number 6, number 7, and he showed that even when he was playing for India. मतलब मैं समझ सकता हूँ कि maybe you don't want to go by IPL form, but वो एक साल इंडिया के लिए T20 खेला and he was in terrific form. मतलब not even one single game there was जहाँ वो नहीं रन बना रहा था. Even in that game against Afghanistan when he played with Rohit Sharma, पूरी team out हो चुकी थी, and he single-handedly batted with Rohit Sharma, to kind of get India to that amazing score. I can understand उसका IPL फॉर्म नहीं अच्छा जा रहा था, but it wasn't his fault. ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ फॉर्म था. KKR अगर अच्छा खेल रही थी तो KKR के ऊपर के बैट्समैन सब अच्छा खेल रहे थे. दैट्स व्हाई उनकी लोअर ऑर्डर तक बैटिंग आती ही नहीं थी. आती भी थी तो दे वुड barely be getting like 4-5 overs to bat. आप किसी भी बैट्समैन को 4-5 ओवर के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो. And many times KKR was shuffling their batting order. So to drop him basis, उसने barely कितनी balls खेली यार. मतलब he's not even given a chance. हाँ, एक दो मैच में वो नहीं खेल पाया. But then अगर आप IPL फॉर्म के बेसिस पे जज कर रहे हो तो फिर आप मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? आप अर्शदीप को सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? आप सूर्य कुमार यादव को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? मतलब आई फॉर मी वो चीजें आर वेरी वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी कि आई मीन आई सीरियसली आई थिंक इंडिया के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है दैट वी डोंट सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. हम प्लेयर सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको फोर्स फिट करते हैं कि आप इस पोजीशन पे खेलो. हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को सिलेक्ट किया एज अ फिनिशर व्हेन वी क्लियरली नो कि वो फिनिश नहीं कर सकता है. ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन. वो जब केकेआर के लिए नंबर 6 नंबर 7 पे खेलता था तो वो स्ट्रगल करता था उस रोल में, पर तब भी हमने उसको फोर्स फिट किया कि नहीं, क्योंकि हमको स्काई टीम में चाहिए तो हम उसको नंबर 7 पे जहाँ जगह मिलेगी खिला देंगे. और रिजल्ट आपके सामने ही था. ही कुड नॉट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड कप. सिमिलरली अब वी आर गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप जहाँ पर हमारे फिनिशर्स होंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल. एंड वी नो उनका आईपीएल कैसा जा रहा है. यू लुक एट रविंद्र जडेजा, ही इज barely being able to play any good innings. उनका स्ट्राइक रेट देख लो आप, what strike rate he's playing at. In fact, I had pulled up some stats. I'll just share that with you. So if you look at रविंद्र जडेजा का स्ट्राइक रेट 2023 में his strike rate was 143. This year his strike rate is 132. His T20I strike rate in 2022 was 142 and in 2023 was 144. अक्षर पटेल 2023 आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट था 139 एंड 2024 में इस साल इनका स्ट्राइक रेट इज 124. T20I स्ट्राइक रेट 2022 में was 139, 2023 में 157. हार्दिक पांड्या आईपीएल स्ट्राइक रेट 2023 137, 2024 152. T20I स्ट्राइक रेट 2022 में 146 और 2023 में 111. और वहीं अगर आप रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट देखो 2023 फॉर इंडिया वाज 180 और इवन मोर देन 180. सो दैट क्लियरली शोज कि आप एक 180 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले प्लेयर को ड्रॉप करके आप वो प्लेयर ले रहे हो जो 140 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं. दैट इज व्हाई इंडिया लूजेस. दैट्स व्हाई इंडिया नहीं जीत पाती है. जहां पर ऑस्ट्रेलिया आखिरी के 5 ओवर में टिम डेविड को भेजेगी, हाँ, और उनके पास ग्लेन मैक्सवेल होगा. हमारे लिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे होंगे, इसीलिए इंडिया मैच हारती है. और आई मीन आई वाज completely shocked by why India dropped Rinku Singh. हाँ करेक्ट. आई मीन ये हर बार ही प्रॉब्लम देखा है हमने. मतलब ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग. कोई भी वर्ल्ड कप हो, कोई भी पहला मतलब बिग डिसीजन लेना हो तो दे ऑलवेज एक्सपेरिमेंट. 2019 में किया और 2020 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में किया हो. सो आई डोंट नो व्हाई. मतलब जब आई डोंट नो व्हाई वेदर शिवम दुबे विल आल्सो प्ले और नॉट. कोई एंड शिवम दुबे भी हैज बीन प्लेइंग लाइक वो अ स्टार्ट नहीं मिडिल करेगा. ऑर्डर. क्लियरली बोल दिया ना, हार्दिक पांड्या इज द वाइस कैप्टन. नाउ इफ यू सॉ द प्रेस जो कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, सो उसमें देवर आस्क हार्दिक पांड्या इज द वाइस कैप्टन. तो वहां पर जीत कर क्लियरली ही बैक हार्दिक पांड्या एंड ही सेड कि वी बिलीव इन हार्दिक पांड्या. ही इज अ वाइस कैप्टन. ही ब्रिंग्स स्किल सेट्स टू द टीम जो किसी में भी नहीं है. सो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज स्टार्टिंग. अब अगर हार्दिक नो इन पांड्या स्टार्ट केस कर रहे हैं तो फिर शिवम दुबे की जगह होगी नहीं टीम में.
In case they don't want to play Akshay Patel and want to play another batsman तो होगा, बट स्टिल मेरा पॉइंट है कि वो भी ही इज प्लेइंग अ मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहे हैं, या पिछले साल थोड़े से और ऊपर आ रहे थे वो, अ कंप्लीट लो ऑर्डर बैट्समैन जो धोनी करते थे, इनफैक्ट रायना करते थे, मतलब बहुत पहले. आई थिंक when you have a player like Rinku Singh, it's not selecting him for a perfect position that India has been looking for such a long time. It is a big, big mistake, and every time these mistakes are happening before a major tournament like a World Cup. 2019 वर्ल्ड कप में तो थ्री डायमेंशनल विजय शंकर, अंबती रेड्डी को ड्रॉप करके विजय शंकर ले गए थे. पर इसमें आप लोगों के क्या थॉट्स है यार कि इफ वे सेइंग वी आर बैकिंग हार्दिक पांड्या सो मच, सो हार्दिक पांड्या प्लेज एज आर बेसिकली आवर फिफ्थ बॉलर ओनली, so that we can pick up Shivam Dube as a sixth bowling option. सो Does that work for बेसिकली you? बेसिकली अगर जैसे सो कल जो रोहित शर्मा की और अगर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें देयर वर टू थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच केम अप. सो उसमें रोहित शर्मा वाज आस्क्ड कि आपने चार स्पिनर्स क्यों सिलेक्ट किए. सो ही सेड हमारी स्ट्रैटेजी है. ही सेड Hmm. हमें पता है वेस्ट इंडीज के पिचेस स्लो हैं एंड हमें ये पता ही नहीं अभी यूएस में पिचेस कैसी हैं. प्लस मैचेस विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग. सो ही सेड के आई वाज वेरी क्लियर एंड अगरकर सेड के द कैप्टन वांटेड फोर स्पिनर्स. सो ही सेड मेरे को चार स्पिनर चाहिए थे एंड हमारी कॉम्बिनेशन ऐसी है कि वी हैव टू रिस्ट स्पिनर्स एंड टू फिंगर स्पिनर्स. तो आई फील इंडिया विल गो इन विद थ्री थ्री स्पिनर्स इन एवरी गेम. वेदर वो कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, अब वो तीन स्पिनर कौन खेलेंगे. प्लस वी आर ओनली गोइंग विद थ्री फ्रंट लाइन पेसर्स इन बुमराह, अर्शदीप एंड सिराज. तो इसमें से दो खेलेंगे इन एवरी गेम एंड वन विल बी हार्दिक पांड्या. तो इंडिया छह बॉलिंग स्ट्रैटेजी के साथ जाएगी वेयर इंडिया विल हैव थ्री स्पिनर्स एंड थ्री पेसर्स. ये इंडिया का स्टार्टिंग में रहेगा. अब हाउ हार्ड शिवम दुबे कम्स इन वो देखना पड़ेगा बिकॉज इफ यू सी जायसवाल एंड रोहित विल ओपन, वन डाउन विल बी विराट, नंबर 4 पे विल बी स्काई, 5 पे आई थिंक पंत विल स्टार्ट बिकॉज टीम पंत को बहुत बैक करती है, सैमसन नहीं खेलने वाला. Hmm. 6 पे आएगा हार्दिक पांड्या, 7 पे आएगा जडेजा और अक्षर, आई डोंट नो. 8 पे अगेन कुड बी अनदर स्पिनर. 9 could also be another spinner. So we might see 7, 8, 9 पे three spinners and Yeah. then 10 पे बुमराह and 11 पे another pacer. So I think इंडिया इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी. इफ बीच में हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा फॉर्म डगमगाता है या फिर वी फील के वी डोंट नीड थ्री स्पिनर्स, वी नीड टू स्पिनर्स, देन वी माइट गेट शिवम दुबे इन द मिडिल टू बैट. तो आई As थिंक a ये sixth इंडिया bowler की again कॉम्बिनेशन as रहेगी. well. छह बॉलर तो जाएंगे बिकॉज रोहित ने जिसने क्लियरली कल बोला था कि मेरे को चार स्पिनर चाहिए थे स्क्वाड में. तो आई थिंक इंडिया विल स्टार्ट विद थ्री पेसर्स एंड थ्री स्पिनर्स बिकॉज अब प्रॉब्लम ये है कि विद हार्दिक पांड्या यू डोंट नो, कोई इंजरी हो जाए मैच में, यू नेवर नो, यू नीड दोस. आई थिंक 2020 में यू ऑलवेज नीड सिक्स सिक्स बॉलर्स बिकॉज एक भी बॉलर का दिन खराब अगर जा रहा है तो Hmm. आपको वो थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है कि यार एक बॉलर को मैं कम ओवर कराया था, दो बॉलर के मैं कम ओवर कराया था. तो छह बॉलर इंडिया लेके जाएगी ही जाएगी मेरे को ऐसा लगता है. Correct. एक चीज जो हम लोग वैसे हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनलिज्म एंड स्क्वाड चेंज नहीं होता. अगर आप देखोगे हमारा कोर स्क्वाड फॉर द लास्ट थ्री वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप इज बीन द सेम. कि हमारा करेक्ट करेक्ट रोहित कोहली, सूर्य कुमार यादव, पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, बुमराह. करेक्ट करेक्ट. जायसवाल की जगह बस राहुल आ गया. एंड आई थिंक सिराज इज वन इंक्लूजन इन द स्क्वाड. इस पे क्या बट थॉट डिफरेंस आप वो है ना, बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया ने वो कोर रख के दो वर्ल्ड कप जीत लिए. हमने वो कोर रख के हमने वो कोर रख के एक वर्ल्ड कप नहीं जीता है. तो दैट इज द मेजर डिफरेंस ना. दैट इज ट्रू. नहीं मतलब आई मीन और ऑस्ट्रेलिया दो तीन पे हमेशा इनफॉर्म लेके जाती है, लाइक 2020 में जब वो जीते थे, दे हैड मैथ्यू वेड एंड वो उस टाइम फॉर्म पे था, उसको खिलाया, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको नहीं खिलाया. देन मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस वो करते रहते हैं, बट जस्ट इमेजिन शिवम दुबे, रिंकू सिंह, संजू सैमसन फॉर्म में, और वो प्लेइंग 11 में होंगे ही नहीं. रिंकू सिंह तो वैसी स्क्वाड में ही नहीं है, पर शिवम दुबे और संजू सैमसन आपके उसमें ही नहीं होंगे. सो आई मीन जो हमारा बैटिंग लाइनअप मेरे को लग रहा है अभी, जो अभी हमने बोला, आई डोंट थिंक इंडिया कोई भी चांस अभी है वर्ल्ड कप.
There is no chance. There is no person in form apart from विराट कोहली जो मुझे लग रहा है फॉर्म में है. बाकी सबका फॉर्म बहुत वो है. Like ऋषभ पंत is also playing good. He's not been very consistent. एंड And ऋषभ पंत इतना अनप्रिडिक्टेबल है यार, मतलब इफ यू लुक एट हिम, उसने टी20 आईज में ऐसा क्या किया टू टू डिजर्व कि यार यू वॉक बैक इनटू द टीम? मेरे को समझ में नहीं आता है. ही इज बीन सो ऋषभ पंत का सच में कि अनप्रिडिक्टेबल. इवन कमिंग आफ्टर द इंजरी एंड एवरीथिंग, yeah, आईपीएल में भी कितना ही खेला है, उस हिसाब से सिलेक्शन का कुछ सेंस तो नहीं बन रहा है वैसे ऋषभ पंत का. हाँ, जस्ट and मतलब ऐसे उसने प्रीवियस एक मैच बैकग्राउंड. में मार दिए. एंड वो भी उसका रिकॉर्ड पे अगर आप देखो तो ही इज लार्जली स्कोर्ड मोस्ट ऑफ हिज बिग मैचेस दिल्ली में. अब वो दिल्ली से बाहर yeah, जाके तो उसने केकेआर अगेंस्ट भी ही गॉट आउट वेरी अर्ली. हम्म. तो आई मीन ठीक है, ही इज प्लेइंग वेल. आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं अच्छा खेल रहा. ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड, इवन वी सिलेक्टेड हिम. बट टू से कि भाई ऋषभ पंत तो एकदम कमाल एंड we'll straight away put him into the 11. I think संजू सैमसन should play. yeah, संजू सैमसन ज्यादा अच्छा team है. वो एक साल से इंडिया के लिए खेल भी रहे थे. ऋषभ पंत का कोई ऐसा एक्सीलेंट कोई टी20, आई एग्री संजू सैमसन का एक्सीलेंट टी20 रिकॉर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट वो एक साल से इंडिया के लिए खेल तो रहे थे. ऋषभ Correct. पंत एक साल से correct. टीम से बाहर. उनको आप स्ट्रेट अप एकदम टीम में ले आओ एंड बोलो कि नहीं 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 आप ही जाओगे. सेम फॉर हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या Yeah, इज इन टेरेबल फॉर्म राइट नाउ विद बोथ बैट एंड बॉल. ठीक है, बॉलिंग में ही स्टिल इंप्रूविंग अ बिट, बट टू सेव एवरी टाइम कि नहीं वी विल बैक आवर कोर प्लेयर्स, इट्स लाइक यार तुम्हारी परफॉर्मेंस होती नहीं है बट यू स्टिल कंटिन्यू टू बैक द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स. आई एम वेरी ग्लैड इस बार केएल राहुल को लेके नहीं जा रहे. अदरवाइज केएल राहुल के हमेशा वैसी ट्रीटमेंट रहती थी कि चाहे जैसा भी करो, चाहे वर्ल्ड कप में कुछ करके मत आओ, mm, अगले साल तो आप जाओगे ही जाओगे. एक वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो चुकी कुछ प्लेयर्स में कि हम कैसा भी खेल लें. रविंद्र जडेजा क्यों है टीम में? क्यों है आई मीन पता नहीं. व्हाई डू वी नीड टू लेफ्ट आर्म स्पिनर्स? मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मे बी जडेजा इज अ बेटर बॉलर देन अक्षर पटेल, बट आपको दो सेम प्लेयर क्यों चाहिए? अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे यार मेरे को जडेजा चाहिए कि मेरे को अक्षर पटेल चाहिए, आप वो डिसीजन लो. आप दो प्लेयर ऐसे लेके correct. जा रहे हो जिनका सेम स्किल सेट है, जो 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 कुछ डिफरेंस नहीं उन दोनों में. वेरी रेयरली विल यू प्ले बोथ ऑफ देम इन द सेम गेम. अब इन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए आप एक स्पेशलिस्ट फिनिशर को हटा रहे हो अपनी टीम में से. No, no, तो वही exactly. बहुत आई ही मीन ठीक है. disappointing है. मतलब it's again same thing. And मतलब बार बार यही चीज चलती रहती है. मतलब there's always this issue with Indian selection के हो जाएगा इस बार, हो जाएगा इस बार, हो जाएगा. उस चक्कर में कितने सारे आईसीसी इवेंट्स हम वो कर दिए है. मतलब हमने हारे हैं और कोई अच्छा परफॉर्मेंस इस मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप को छोड़ के हमारा किसी में रहा नहीं है. मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन टी20 टीम एंड आपकी ओडीआई टीम. वो क्लियरली नहीं होती है. एंड मतलब बॉलर्स आल्सो, आई मीन बुमराह, कुलदीप एंड चहल, ये तीन मेरे को लग रहे हैं जो ठीक है थोड़े बहुत फॉर्म में है. बट चहल तो इसमें भी पिछले दो आई मैच थिंक से चहल पिटने में लग चहल गया है. पिटना शुरू हो गया काफी जब चहल से. की तो form बता हाँ दिया. ठीक है. चहल मतलब पिटने लग स्टिल गया. मतलब आपके कोर 15 मेंबर में से आपके टोटल 5 प्लेयर हैं जिसको हम अभी बोल सकते हैं दे आर गुड फॉर्म. 6 प्लेयर हैं, बाकी आपके प्लेयर हम्म. फॉर्म में है ही नहीं. एंड मतलब इवन इफ सिलेक्शन ऑन द बेसिस करनी थी कि कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन आपका लोअर ऑर्डर होगा, तो उसके हिसाब से आईपीएल के उनको बोल देना चाहिए था कि आईपीएल अपने पोजीशंस पे खेलो. लाइक इवन करेक्ट. लाइक करेक्ट. ईशान एंड एग्जैक्टली. केएल को भी बोला. मतलब दे वांटेड टू ओपन, मतलब ओपन की जगह ही नहीं तो व्हाई दे वांट टू ओपन प्ले मिडिल ऑर्डर करेक्ट. में. हार्द एग्जैक्टली. अगर शिवम दुबे अगर करना ही था आपको कि वे कंसिडरिंग हिम, और हार्दिक पांड्या भी, और इनफैक्ट ऋषभ पंत हो तो आप लोअर ऑर्डर में खेलो ना, जो आपकी इंडिया की पोजीशन होती है. एग्जैक्टली. फोकस ऑन द वर्ल्ड और कप. जडेजा जडेजा अक्षर पटेल टॉप ऑर्डर में खेलने लग गए. जडेजा पिछले 2 या 3 मैचेस से नंबर 4 पे आ रहा है. जब आपने उसको वर्ल्ड कप में 4 पे खिलाना ही नहीं है तो आप उसको क्यों एज अ फिनिशर सिलेक्ट कर रहे हो? आप Correct. अक्षर पटेल एज अ फिनिशर खेल ही नहीं पा रहे दिल्ली के लिए. दैट्स व्हाई स्टार्टेड कमिंग अप द ऑर्डर कि मैं नहीं खेल पा रहा नीचे, मुझे ऊपर अप द ऑर्डर भेजो. तो जब आपके ये And प्लेयर्स बैटिंग ऑर्डर में ऊपर खेल रहे हैं तो आप उनको वर्ल्ड कप में एज अ फिनिशर क्यों लेके जा रहे हो? नहीं, आई डोंट नो, अक्षय पटेल तो मतलब आई डोंट नो कहाँ से उसको सिलेक्ट करा है, क्यों करा है, वो क्यों बार बार टीम में आता है. आई हैव नो लॉजिक.
कभी एज परफॉर्म नहीं एज अ करा बैटिंग कभी। एज अ बैटिंग ऑप्शन आई थिंक वो जडेजा से थोड़ा बेटर है, इस वजह से आ जाता है। हाँ बॉलिंग करेक्ट। डिपार्टमेंट में ही इज अराउंड 75-80% ऑफ जडेजा। उसके यार अलावा प्ले अ एक दो प्रॉपर चीज बैट्समैन ना आप, हाँ। प्लेयर खिलाओ ना आप एज आई थिंक अगर आप, यू डोंट लाइक एन ऑस्ट्रेलियन टीम ना जो मैक्सवेल आके 2 ओवर स्पिनर में ऐसे निकाल लेता है, लाइक इज अ प्रॉपर बैट्समैन, वो 2 ओवर ऐसे डालेगा कि स्पिन में आपके निकल जाएंगे। एक कैमरून ग्रीन, मतलब देर ऑलराउंडर है, लाइक प्रॉपर ऑलराउंडर। मतलब हार्दिक पांड्या नहीं हो ना, ना जडेजा हार्दिक पांड्या है, ना अक्षय पटेल है। और जब आप जडेजा को ठीक है बैक कर रहे हो तो अक्षय पटेल की कोई जगह नहीं बनती है। मतलब बैटिंग भी, इफ यू सेलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ बैटिंग कि वो थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है, कहाँ करता है वो बैटिंग, कब परफॉर्म किया। अब वही है कि रिंकू तो सिंह को या तो बोलो कि थोड़ी सी राइट आर्म ऑफ स्पिन डालना शुरू हो जाए, इसी बहाने कुछ हो जाएगा। भाई रिंकू सिंह का तो बेचारा का दिमाग घूम गया है, उसी तरह नहीं बन रहे। वो बेचारा एक जब से चीज उसको पता लगा मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा, रन बनने बंद हो गए हैं। एक चीज मैं आज कहना भी आउट चाह हो रहा गया था था। कि मेरे को लगा था आज तो परफेक्ट मौका था, मुंबई इंडियंस खेल रहा है, सब देख रहे हैं मारेगा आके, आज भी आउट हो गया। पिच भी पीयूष अच्छी चावला की बॉल पे आउट हो गया। थी। बट एक चीज मेरे को तो लग रहा हाँ। था कि हार्दिक पांड्या, अभी हम कह रहे हैं कि मतलब बॉलिंग वगैरह में वो चल रहा है, आई थिंक क्योंकि अंडर समवन else's leadership, I think that's a Rohit Sharma setting the field according to his plan and everything. हार्दिक पांडे if you're taking as a मतलब कि 2 या 3 ओवर निकाल दे मेरे लिए, मेरे को लगता है कि someone else setting the field for him, someone else setting giving him a game plan to bowl according to this, आई थिंक उस हिसाब से हार्दिक पांड्या हमारे लिए तब भी थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो कर लेगा। बैटिंग में अब वो उस टाइप का हम्म, तो नहीं रहा है कि हम्म, जिस टाइप का वो 2017 2019 वर्ल्ड कप टाइप था, कि मतलब आते ही एक ट्रेडमार्क हम्म, होता था पांड्या की कि एक छक्का लगा तो मतलब 2 ओवर कंसेक्यूटिव भी लग रहे उसके बाद में। हार्दिक पांड्या उसमें मतलब किसी और के प्लान पे तो चल ही पाएगा। और एक और हम्म, चीज जो अगेन नॉट इंडिया बट दूसरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में मैंने नोटिस करी, सो द लास्ट वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड विच T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड 2021 का, उससे में और अब में सिर्फ 3 चेंजेस है। दैट इज, एक तो फोर्स्ड है कि एरन फिंच रिटायर हो गया, दूसरा हम्म। एक नेथन एलिस जो उस टाइम पे स्क्वाड में था बट इंजर हो गया था, इसलिए तब नहीं आ पाया था, इस बार ही आ गए। और एक जो स्टीव स्मिथ को उन्होंने हटाया है। चीज में तो तो दैट मेंटालिटी कि मतलब डेविड वार्नर के अभी इतने रन नहीं चल रहा है पर तब भी वी नीड हिम इन द स्क्वाड। विकेट कीपर में हमारा मैथ्यू वेड अच्छा है, T20 में थोड़ा फिनिश वगैरह ठीक कर लेता है, सो वील हैव हिम देयर। ट्रेविस हेड तो मेरा सीधा सीधा एरन फिंच की जगह ओपनिंग की जगह पर आ ही रहा है। फ्रेजर मैकगर्क जो हमने थोड़ा देखा है उनके बिग बैश में रन मारे, आईपीएल में चलो थोड़ा ढंग का खेल रहा है, बट दे डिडंट कंसिडर हिम क्योंकि अभी इतना टैलेंटेड, इतना वो नहीं है टेस्टेड, और हमें अभी उस पर रिस्क नहीं लेना। स्टीव स्मिथ इतने बड़े नाम वाला बंदा, उसको तुम स्क्वाड में से ही ड्रॉप कर रहे हो क्योंकि पता है कि उससे T20 इतना अच्छा नहीं खेला जाता, तो हमने उसे नहीं खिलाना। एंड पैट कमिंस जो सब कुछ इतना बढ़िया कर रहा है, एक वर्ल्ड कप जिता चुका है, पाकिस्तान में टेस्ट जिता चुका है, एशेज रिटेन कर चुका है, उसको भी तुमने बोल दिया कि नहीं T20 में तेरी कैप्टनसी नहीं चाहिए, T20 में मिचेल मार्श को करने दो। स्टोइनिस एक और बंदा कि स्टोइनिस को जिसका लास्ट सीरीज नहीं खिलाई थी न्यूजीलैंड वाली एक दो, उससे उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर करा ऑस्ट्रेलिया ने, बट दे ब्रॉट हिम उसको फॉर भी द ले आया। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो हम्म। मेंटालिटी इस टीम की भी कहनी पड़ेगी कि इतने प्रोफेशनल तरीके से जो खेलती है टीम, बहुत ही उनको कमेंड। पता है, उनको पता है यार कौन से प्लेयर्स को हमें बैक करना है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। नो वट करेक्ट। एवर सेड एंड डन, हाँ मतलब ये जितने भी वो प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं 10-12 जो उनका कोर ग्रुप है, वो हर साल डे इन डे आउट उनके लिए परफॉर्म करे जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, ये तीनों हर फॉर्मेट, हर जगह मैच पहुंच बाय मैच, जाते कोई मैच हो, ये ही तीनों खेलते हैं और परफॉर्म करते रहते करते रहते करते रहते। उनको पता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट आएगा, हम तुमको मैच जिता देंगे, टेंशन मत। हमारे यहाँ पर करेक्ट। प्लेयर कुछ करे ना करे, भाई साहब खेलोगे तो तुम सही, हैं। वो प्रॉब्लम। बट यार एनीवेज ये गाइस इशू आई थिंक थोड़ा सा, मतलब वो पता नहीं अब कब सॉल्व होगा। आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप है, अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ देन हाई टाइम कैप्टेंसी, शफलिंग ऑफ टीम, सब कुछ चेंज होना होगा। मतलब लेट्स सी। पिछले पिछले एक दो वर्ल्ड कप से बात उठ चुकी है संजय पर वो दिखता नहीं होता वो कभी बीसीसीआई के साथ। नहीं, लास्ट वर्ल्ड कप भी, ओडिया वर्ल्ड कप पे तो आई थिंक बहुत
सही, अच्छी टीम सिलेक्शन, सब कुछ आई थिंक बढ़िया था T20 में अब हो जाएगा यार इस वर्ल्ड यार। कप के बाद। आई थिंक जो सीनियर प्लेयर T20 है, रोहित में शर्मा, जडेजा, कोहली ऑल्सो मे बी, उनको इनको बोल देंगे यार क्या अब हो गया, ये अगला T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है। तब तक रोहित शर्मा 39 का हो जाएगा, वो कहाँ खेल पाएगा 39 के बाद। यार, तो इनको आई थिंक कुछ सीनियर प्लेयर को बोल देंगे कि यार अब थोड़ा हम जूनियर प्लेयर्स की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, बिकॉज ये वर्ल्ड कप बहुत क्लोज था टू द ओडीआई वर्ल्ड कप, 6 महीने में हो रहा है। तो आई थिंक लोगों के इमोशंस भी थे कि यार एक और मौका दे के देख लो, वी केम सो क्लोज। तो दे वर लाइक कि अभी भी चलो खिला लेते हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट साइकिल में तो आई डोंट थिंक, आई डाउट इतने सारे सीनियर प्लेयर्स जाएंगे ये सारे। करेक्ट करेक्ट। बट एनीवेज आई थिंक जो भी टीम सेलेक्ट हुई है, वी आर ऑल फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, और हमको टीम को तो बैक करना ही है। तो अब जो टीम हो गई है सिलेक्ट, वो हो गई है। एंड स्टिल नॉट बैड सिलेक्शन, आई वुड स्टिल से कि अच्छी कुछ सिलेक्शंस करी हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज कि संजू सैमसन सिलेक्ट हो गया। आई वाज वेरी सरप्राइज कि चहल सिलेक्ट हो गया। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा था पक्का कि नहीं सिलेक्ट करेंगे, सैमसन को नहीं करेंगे, आई थॉट चहल को नहीं करेंगे। सो गुड, कुछ सिलेक्शंस अभी भी अच्छी हैं। हाँ, आई स्टिल होप कि 25 मई तक रिंकू वापस आ जाए टीम में। आई रियली होप सो कि he gets some form and he gets into the team. बट अब जो टीम सिलेक्ट हो गई है, वी हैव टू बैक द प्लेयर्स। 19 नवंबर 2023 का दर्द हम सबको अभी तक है। सो वी होप कि दिस टाइम दैट डजंट हैपन एंड वी गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, सो दैट एटलीस्ट हम सीनियर्स को विदा कर सकते हैं विद द ट्रॉफी, एंड वी कैन से दैट थैंक यू फॉर विनिंग अस अ ट्रॉफी। फॉर एग्जांपल जैसे 2011 वर्ल्ड कप में हुआ था, दैट टीम, वो जो हमारा कोर ग्रुप था इतने सालों का, वो एक ट्रॉफी जीते और उसके बाद वो कोर चला गया, देन दोस प्लेयर्स रिटायर्ड। बट yeah, एटलीस्ट वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करके गए कि हम एक ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं, हम जाते जाते एक ट्रॉफी आपको देकर जा रहे हैं फैंस को। तो आई रियली होप कि इस कोर के साथ भी ऐसा हो, बिकॉज अब 11 साल हो गए हमको आईसीसी इवेंट जीते हुए। तब हमारा डिफरेंट कोर था, ये सब प्लेयर्स नहीं थे। बट आई रियली होप कि ये कोर भी हमको एक ट्रॉफी जीत जाए, एंड हम इनके साथ भी एक ट्रॉफी जीते, ताकि वी मूव इन टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, because now it could be the start of a new transition and a new phase where new players will come into the Indian team. समय का yeah. पहिया चलता है, दिन ढलता है। यही भाई मारी थी एकदम आपके उसमें। नहीं नहीं, अभी अगला चैप्टर देखते हैं कैसा होता है। मतलब आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज विल बी हु विल बी कैप्टन, हु विल बिकम वाइस कैप्टन। ये बहुत बड़ी फाइट होने वाली है अब, आई थिंक नेक्स्ट 6 7। महाभारत, महाभारत। सबको सबको कैप्टन कैप्टन बनना है बनना है भाई, सबको कैप्टन बनना है। करना भी तो। चाहिए यार, अब तो ठीक है। अब या तो फिर वही, या तो 2007 वर्ल्ड कप वाला कर दे कि एकदम ही नई टीम लेकर आ जाओ, जो तुम्हारे उस टाइम पे भी हमारे जो उस टीम में भी पुराने प्लेयर्स हमारे क्या थे, युवराज, धोनी, गंभीर एंड सहवाग टाइप्स है ना। तो सिमिलर उसमें हमारे पांड्या, बुमराह और एक दो और, जो पंत हो गया, सैमसन हो गया, जो हमारे थोड़े स्लाइटली मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, और बाकी यंगस्टर्स की एक टीम बना दो। ये तिलक वर्मा और सर जो हमारे आईपीएल फाइंड्स वगैरह हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप वाले फाइंड्स हैं, इन सब की लेट्स ट्राई दैट एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो इस वर्ल्ड कप के बाद होगा जो होगा, अभी तो हाँ नहीं है, अभी करेक्ट। पहले वर्ल्ड कप तो हो जाए, उसके या बाद देखेंगे। लहरा दो, चलो। लहरा दो। भाई अब वो रील नहीं देखनी भाई, वो खड़ा हूँ आज भी अब हो वही भाई, वो गया। हो गया, हो गया भाई, अब नहीं देख सकते हम, हमारा हो नहीं हो गया है। सकता नहीं, अब। अब हमें वर्ल्ड कप जिता दो भाई, प्लीज। ये वर्ल्ड ये कप तो उम्मीद। मैं एज अ व्यूअर देखने वाला हूँ, कोई इमोशंस नहीं होने वाले। सारे इमोशन खत्म हो चुके हैं ओडिया वर्ल्ड कप में। जितना था सबने छोड़ के दे दिया है। आई थिंक दिस वर्ल्ड कप विल बी एंजॉयड लाइक मैं तो 2007 जैसे एंजॉय करूंगा, कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है। भाई आई विल अंडरडॉग्स की एंजॉय तरह लाइक जाएंगे फिर गुड से क्रिकेट। कभी भी। हाँ, खेल गए तो खेल गए, नहीं खेले तो हाँ, कोई नहीं, देख लेंगे। पहली कोई बार भी। तो वी हाँ, आर रेडी कुछ टू नहीं। गेट हर्ट अगेन। हाँ, चलो, थैंक yeah, यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। गाइस। थैंक यू।